Hello friends, welcome back to our class. Today we will start a new chapter trigonometry. I have divided trigonometry into three parts. In this video I will cover units for measuring angle. First is sesquidecimal system, second is centesimal system and third is radian measure. Next is trigonometric ratio, then identities of trigonometric ratios and finally problems on trigonometry. Talking about me and my course, I am Jesh Patil. I will cover foundation building mathematics for a student who are going to appear for JEE, Olympiad and NTSC examinations. If you have any doubt, you can ask me in comment section or also can DM on our Facebook page Leon Class. Please do like, share and subscribe our channel. Please watch this video till end. So let's start with definition of angle. Angle is the measure of rotation of ray QP with respect to QR. मतलब क्या कि जो QP रे वो QR के रिस्पेक्ट में जितना रोटेट होगा उसको हम एंगल कहेंगे उस मेजर को. Then we have a two system to measure two units for measure of angle. One is sesquidecimal system and second is centesimal system. This system is also known as a British system, in which one right angle is divided into 90 degrees. Further, 1 degree is divided into 60 minutes and 1 minute is divided into 60 seconds. Here, single dash denotes the minute and double dash denotes the second. In centesimal system, which is also known as French system, one right angle is divided into 100 grades. Further, one grade is divided into 100 minutes and 1 minute is divided into 100 seconds. So in French system, that is centesimal system, one right angle is divided into 100 grades and grade is denoted by that G. One grade is divided into 100 minutes and one minute is divided into 60 seconds. We will use sesquidecimal system, that is British system, to solve our problems. Third measure is radian measure. An angle made by an arc of length equal to radius of circle at its center is called 1 radian. तो डेफिनेशन क्या बताती है, अगर कोई भी सर्कल होता है और उसमें हम एक आर्क लेते हैं, आर्क ABC एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज O. तो डेफिनेशन क्या बताती है, अगर लेंथ ऑफ आर्क ABC OC के इक्वल होता है, मतलब रेडियस के इक्वल होता है, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा वो एक O1 रेडियन होगा. मतलब लेंथ ऑफ आर्क, let's suppose length of arc ABC is L and radius of circle is R. When R equals to L, then the angle subtended at its circle is 1 radian. मतलब जब लेंथ आर्क ABC का लेंथ R के बराबर होगा, मतलब रेडियस के बराबर होगा, तो जो सबटेंडेड एंगल होगा सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा. अभी हम रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं. So 1 radian equals to 180 by pi degree. तो एक रेडियन क्या होता है, 180 by pi डिग्रीज के बराबर होता है. तो हम रेडियन और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं, अगर हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री. So suppose that we have x radian and we have to convert x radian into degree, then we can multiply 180 by pi with x and the value of this equation will be the value of angle in degrees. मतलब क्या, अगर हमको रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है और हमारे पास x रेडियन होता है, तो हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई को उस रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आ जाएगा वो तुम्हारा डिग्रीज में आ जाएगा, डिग्रीज में आ जाएगा. तो उसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन होता है. अगर पाई बाय 3 रेडियन को हमको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे,
180 by pi into pi by 3. So pi and pi will get cancelled and 180 by 3 equals to 60 degree. इसका मतलब क्या, पाई बाय 3 रेडियन जो होता है, इधर लिख देता हूँ, पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो. मतलब अगर हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो हमारा डिग्री में वैल्यू होगा. नाउ सी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल OQP, right angle at Q. So sin theta equals to y by r. तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे. ये तो सिंपल फॉर्मूले ये जो आपको याद रखने चाहिए, बल्कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप याद रहते जाएंगे. तो sin थीटा क्या होता है, y by r होता है. मतलब क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. cos थीटा होता है x by r, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस. tan थीटा क्या होता है, y by x, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. cosec थीटा क्या होता है, r by x होता है. मतलब हाइपोटेनस बाय r by r, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड. sec थीटा क्या होता है, r by x, मतलब हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड. एंड cot थीटा क्या होता है, x by y, मतलब एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड. Now we will see some relation between this sec, sin cosec, sec and tan cot. So first is sin theta equals to 1 by cosec theta, or I can write it as sin theta into cosec theta equals to 1. Similar for cos and sec. So cos theta equals to 1 by sec theta. मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos theta into sec theta equals to 1. Third is tan theta equals to 1 by cot theta. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan theta into cot theta equal to 1. तो ये तीन रिलेशन है. जो sin थीटा होता है उसका वो इक्वल होता है 1 by cosec थीटा से, cos थीटा होता है 1 by sec थीटा से, और tan थीटा होता है 1 by cot थीटा से. तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो sin थीटा into cosec थीटा आ जाएगा 1, क्योंकि cosec को इधर मल्टीप्लाई किया है. फिर sec को इधर मल्टीप्लाई करते तो cos थीटा into sec थीटा आ जाएगा 1. सिमिलरली फॉर cot थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे tan थीटा से आ जाएगा tan थीटा into cot थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक. तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो आपको याद रखने चाहिए. बहुत सारे एग्जांपल के तीन रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं हम. आसान है काफी. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. तो देखो ये तीन रिलेशन है, काफी आसान है. इनके ऊपर अच्छे खासे सवाल भी बन जाते हैं अगर बेसिक लेवल पे देखें, और ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे हम थीटा की कोई सी भी वैल्यू डाल दें जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का 1. 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 plus cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. कुछ लोग इसको इस तरह भी याद रखते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो मेरे को ये अच्छा लगता है 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और 1 plus cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. तो मैं इस तरह याद रखता हूं. अभी हम जो अभी तक फॉर्मूले देखे उनको कुछ एग्जांपल करते हैं. So let's see the example. If tan theta plus sin theta equals to m and tan theta minus sin theta equals to n, show that m square minus n square equals to under root 4 into under root of mn. Now I can first I will take LHS, that is m square minus n square. So I can write m square minus n square as m plus n
into m minus n. Now add m and n. So sin theta minus sin theta equals to 0. So tan theta plus tan theta, that is 2 tan theta into m minus n. So tan theta minus tan theta 0. So sin theta minus of minus sin theta equals to 2 sin theta. So which is equals to 4 into tan theta into sin theta. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या लिख दिया, m प्लस n इंटू m माइनस n, और फिर ये m को और n को ऐड कर दिया, तो sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा 0 एंड tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, फिर m माइनस n, तो tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin ऑफ माइनस sin थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा, और मल्टीप्लिकेशन था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 4 tan थीटा इनटू sin थीटा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अंडर रूट में ले लिया और इसकी पावर 2 कर दी, तो इसको मैं लिख दिया 4 इंटू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो हमने एक आइडेंटिटी देखी थी जिसमें मैंने बोला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू sin स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे, अभी इसको हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो sec स्क्वायर थीटा था उसमें हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें क्या था, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा और cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा, तो वही इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमको पता है जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी एक रिलेशन है, और एक रिलेशन है जो cot के लिए आता है, cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रिलेशन इसमें यूज करेंगे, तो हम देख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा है, तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाय cos थीटा को हम tan लिखते हैं, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिटी था tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा वो यूज करके इसको लिख दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ से तो शायद कुछ लोगों को दिख भी गया होगा कि हमारा आंसर ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस sin थीटा इनटू tan थीटा माइनस sin थीटा। तो क्या करो, इसको तुम m स्क्वायर पकड़ लो और इसको n स्क्वायर पकड़ लो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को क्या क्या लिखते हैं हम, m प्लस n इंटू m माइनस n। ये जो क्वेश्चन में दिया था वो वाला m नहीं, मैंने इसी जनरली लिया है, तो m स्क्वायर n माइनस n स्क्वायर को क्या लिखते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n, तो a और b भी लिख लो, ठीक है। तो उसी तरह मैंने भी क्या कर दिया, m प्लस n मतलब क्या, tan थीटा प्लस sin थीटा, और फिर m माइनस n मतलब tan थीटा माइनस sin थीटा, और ये जो था वो हमारे अंडर रूट में था, और ये 4 इधर 4 आ गया इनटू में मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्वेश्चन में हमको दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा n है और tan थीटा माइनस sin थीटा n है, तो वो हो गया 4 इंटू
under root of m minus n. Hence we prove that n square minus n square equals to 4 into n. तो जो m और n की जो दिया था m equals to tan theta plus sin theta और n equals to tan theta minus sin theta, तो उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है m square minus n square equals to 4 into under root of mn. Let's see the example. Prove that cot theta plus cosec theta minus 1 upon cot theta minus cosec theta plus 1 equals to cosec theta plus cot theta equals to 1 plus cos theta by sin theta. सबसे पहले हम ये जो cos theta plus cot theta ये इसके बराबर है वो वाला प्रूफ करेंगे. तो अभी सबसे पहले हम एलिप्स को लेते हैं, मतलब cot theta plus cosec theta minus 1 upon cot theta minus cosec theta plus 1 को लेते हैं. तो cot theta plus cosec theta, अभी मैं क्या करूंगा, 1 को क्या लिखूंगा, मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी बता दी, उसमें प्रॉपर्टी क्या थी, 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, cosec square theta minus cot square theta. तो 1 को लिख देंगे cosec square theta minus cot square theta डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की टर्म लिख देंगे cot theta minus cosec theta प्लस 1. अभी हम क्या करेंगे, जो ऊपर में cosec square theta minus cot square theta की जो टर्म है उसको a square minus b square की तरह कैसे लिख सकते हैं, a plus b into a minus b. तो वही लिख देंगे cot theta plus cosec theta minus cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta. तो यहाँ पे मैंने cosec theta minus cot theta लिखा है. यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम इसलिए ऐसा थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है. ठीक है, डिवाइड बाय cot theta minus cosec theta प्लस 1. तो अभी मैंने ये टर्म मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta. तो अभी क्या करूँगा, cot theta plus cosec theta है, तो यहाँ पे भी cot theta plus cosec theta है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cot theta plus cosec theta into 1 माइनस ये वाली टर्म क्या है, cosec theta minus cot theta, तो जाएगी माइनस cosec theta minus cot theta अपॉन cot theta minus cosec theta प्लस 1. तो अभी इसमें मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो cot theta प्लस cosec theta into 1 माइनस cosec theta प्लस cot theta डिवाइड बाय cot theta माइनस cosec theta प्लस 1. तो मैंने क्या किया, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 को, तो क्या आ जाएगा माइनस cosec थीटा एंड माइनस इनटू माइनस प्लस cot थीटा. तो ये जो डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर में जो टर्म है 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा दोनों सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगी. चलिए क्या कैंसिल. फिर हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, cot थीटा प्लस cosec थीटा. तो हमारा पहला प्रूफ तो हो ही गया ना, cot थीटा प्लस cosec थीटा. Hence we prove that cot theta minus cosec theta plus 1 upon cot theta minus cot theta plus cosec theta plus 1 upon cot theta minus cosec theta plus 1 equals to cot theta plus cosec theta. अभी हम उसका आगे का प्रूव करेंगे, वो तो एकदम सिंपल ही है. मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा, और प्रॉपर्टीज में हम देखा था cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 upon sin थीटा. तो वो लिख लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा. Hence we prove that cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा. ये दो एग्जांपल हो गए. अगर ये दोनों एग्जांपल में आपको कोई भी डाउट होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या मेरा फेसबुक चैनल है न्यून क्लास करके, उसमें भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पे भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. Let's see the table values of trigonometric ratio.
एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, इनके जो पर्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उन पे क्या वैल्यू होती है वो देखेंगे। तो sin ऑफ 0 0 होता है, sin ऑफ 30 1/2, sin ऑफ 45 डिग्री 1/2, sin ऑफ 60 डिग्री 2/2, sin ऑफ 90 डिग्री 1। वैसे ही cos का होता है sin of 0 1, sin of 30 √3/2, sin of 45 1/2 and sin of 60 1/2, sin of 90 0। tan of 0 क्या होता है 0, tan of 30 1/3 √3 सॉरी, tan of 45 1, tan of 60 √3 और tan of 90 इनफाइनाइट। कोई लोग यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखते हैं, वो दोनों एक ही। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है कि वो एसिम्पटोट जो आता है उसके ग्राफ में tan के, तो उसमें जो tan का फंक्शन है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, या फिर तुम इसको इनफाइनाइट लिखो या नॉट डिफाइंड लिखो। फंक्शन होता है तो नॉट डिफाइंड वैल्यू अगर लिखनी है लगे तो इनफाइनाइट लिखो। तो सिर्फ तुमको ये तीन ही इनका याद रखना है, या फिर तुम इन दोनों का भी याद रखो सिर्फ। तो अगर ये दोनों का भी याद रख लेते हो तो तुम tan का तो निकाल ही सकते हो ना, sin थीटा बाय cos थीटा करके। जैसे यहाँ पे tan ऑफ 0 क्या है, sin 0 बाय cos 0, 0/1 0। फिर हम एक 60 के लिए देख लेते हैं, तो tan ऑफ 60 का लिख सकते हैं sin 60 बाय cos 60, तो √3/2 बाय 1/2 कितना होता है, √3 होता है। या फिर तीनों का भी याद रख सकते हो। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इनवर्स, तो सारी टर्म्स के इनवर्स ही देख लो। 0 का 1/0 इनफाइनाइट होता है, फिर √3 का 1/√3, 1 का 1, 1/3 का 0 और इनफाइनाइट का 0। sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का इनवर्स होता है, और cosec थीटा होता है sin थीटा का इनवर्स। तो तुम sin थीटा cos थीटा दोनों को याद रखो, या फिर sin थीटा cos थीटा tan के तीनों को याद रखो। फिर उनके जो sec और cosec को sin और सॉरी cos और sin की इनवर्स लिख लेना, और cot के लिए tan का इनवर्स लिख लो। इसलिए सिर्फ sin और cos के दोनों को याद रखो। अब इसके ऊपर अभी हम एक एग्जांपल करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, sin square 30 plus cos square 30, we have to find the value of sin square 30 plus cos square 30। तो हमने इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे, जो sin square थीटा plus cos square थीटा था उसकी वैल्यू बनाती है, और एक फिर अगर हम उसको सीधा उसकी वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो, और हमको उसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि sin square थीटा plus cos square थीटा 1 होता है कि नहीं। तो sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। तो इससे तो ये पता चल जाता है कि sin square 30 plus cos square 30 की वैल्यू 1 है, और sin square थीटा plus cos square थीटा जो इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी है, वैलिड है हर एक एंगल के लिए। अभी हम उसी वही जो उसमें तीन प्रॉपर्टी दी थी उसका और एग्जांपल लेते हैं। जैसे sec square थीटा, मतलब उसमें थीटा की वैल्यू हम 30 देखते हैं, माइनस tan square 30। तो अभी हमको क्या करना है, sec square 30 माइनस tan square 30 का वैल्यू निकालना है। तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 स्क्वायर, माइनस tan 30 की होती है 1/√3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1। तो sec square 30 माइनस tan square 30 की वैल्यू आती है 1। उससे हमने वो वाली आइडेंटिटी प्रूव कर दी जो थी 1 plus tan square थीटा इक्वल्स sec square थीटा, और sec square थीटा माइनस tan square थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटी हम इनडायरेक्टली मतलब वैल्यू डाल के भी प्रूव कर दी। अभी एक देखें जो इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक था जिसमें हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन किए थे, उसका हम एग्जांपल देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मैं 3 डिग्री लेते हूँ, एंगल ले लेते हूँ 3, वो एक पहले 45 डिग्री लेता हूँ, फिर 60 डिग्री और फिर 30 डिग्री लेता हूँ। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसके लिए हम क्या करते थे, डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते जो एंगल था डिग्रीज में, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, हर एक डिग्री कर देता हूँ, हर एक एंगल जो है कोई फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा 45 के पाई बाय 180 into 45 इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन। तो 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री के लिए पाई बाय 180
into 60 equals to पाई बाय 3 रेडियन। फिर हम अभी 30 डिग्री के लिए वैल्यू डालेंगे तो पाई बाय 180 into 30 equals to पाई बाय 6 रेडियन। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 की वैल्यू क्या देंगे रेडियन में? पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन एंड पाई बाय 6 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं जो फॉर्मूला है उसके साथ। So guys, I hope you have understood the topics which I covered in this lecture. I have uploaded assignments on trigonometry on my Facebook page Neon Class with solution. So please go through that because trigonometry requires a lot of practice. तुम जितना ज़्यादा सवाल करोगे उतना तुम्हारा trigonometry अच्छा होगा। तुमको कोई भी डाउट आता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो या सीधा मेरे Facebook पेज पे मुझको DM कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you guys.